Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of the Lord, most gracious, most merciful. My name is Sheikh Muhammad Ali, and I hail from Karachi, and I've been here in Islamabad for the last 17.5 years. I'm an avid reader, I'm a writer, and I'm a pseudo scholar, if I may. And I have read many books over the years, and lately, now that I've been into writing and into speaking at different audiences, at different forums and different platforms throughout the country. And I've been reading a lot on Sufism. I've read the Quran. So lately I've read this beautiful book by Alif Shafaq called The 40 Rules of Love, and I fell in love with it. Not that I did not read the 40 rules prior to reading this book. I had already read this some 25-30 years ago, the dialogue between Shams Tabriz and Rumi. But Alif brings to light another perspective when she writes about the 40 rules of love, whereby she discusses this beautiful love story of a lady called Aya and Zahra. And then another plot that she talks about is the love between Rumi and Shams Tabriz. And she has again reintroduced us to what Rumi and Tabriz, how and why did they fell in love, and the 40 rules of love, whereby it is not just these 40 rules, these are basically processes and procedures for a man, for a woman, for a human being to fall in love, and fall in love not just on the temporal and the physical world with the companionship kind of a love between a wife and a husband, but the love that can happen between an individual and his God. And that kind of pushed me to schedule this talk here at the Hangout. Kamran Rizvi Sahab being a wonderful friend, and he always allows me to come here and speak, and I really appreciate the people behind this effort, whereby Hangout is a platform where I find a family kind of environment, and I come and speak on these subjects and discuss and tell the people around us that how important is reading, not just any subject that I may be pursuing towards my professional career or my educational career, but reading in general. There's wonderful literature out there, and I would recommend to all of my audience to please go back and do the basics, do the fundamentals, and read all the literature that is available, whether it be religion, whether it be Rumi, whether it be Bastami, or Shams Tabriz, or Rumi for that matter, and live your life according to the path that God wants us to be. So I'm again very thankful, especially today, to my audience and to Hangout for providing me this wonderful platform whereby I can come and share my views with the audience. Thank you very much for my listeners, for my audience to be here today. And I'd be, inshallah, putting this on the internet for the rest of the people to also follow as to what I've talked about on this subject today. Thank you so very much. Allah Hafiz. So rather than much waiting, let's just start with the next rule, which is rule number 21. This rule says, when a true lover of God goes into a tavern, the tavern becomes his chamber of prayer. But when a wine bibber goes into the same chamber, it becomes his tavern. In everything we do, it is our hearts that make the difference, not our outer appearance. So Sufis do not judge other people on how they look or who they are. When a Sufi stares at someone, he keeps both eyes closed and instead opens a third eye, जिसे हम उर्दू में बसीरत की आँख भी कहते हैं, the eye that sees the inner realm of the person. So यहाँ जो बात कर रहे हैं शम्स बेसिकली वो ये कि टैवर्न शराब खाना, उसमें अगर एक ट्रू लवर ऑफ गॉड भी जाता है तो बज़ाहिर तो लोग उसको देखते हैं
कि जी वो शराब खाने में चला गया है और क्या उसकी आज नीयत है, लेकिन इस तरह के हजरात अगर शराब खाने में भी जाते हैं तो वहाँ उनका तसव्वुफ़ बरकरार रहता है और उसमें चेंज नहीं आता, और वहाँ भी एक मिजाज छोड़ आते हैं, एक अपनी पर्सनालिटी छोड़ आते हैं जिससे कि लोग इम्प्रेस होते हैं और कोई ऐसी बात कर आते हैं जिससे कि शायद कोई शराब पीने वाला, गुनाहगार, गलत काम करने वाला, गलत तरफ चलने वाला उनकी किसी अदा से, किसी रुत से, किसी वजह से इंस्पायर हो जाए और वो सारे गलत काम छोड़ के अल्लाह की सिरात मुस्तकीम की तरफ वापस आ जाए, लौट आए। तो बेसिकली ये पर्सपेक्टिव है इस रूल का। अगला रूल नंबर 22 कहता है लाइफ इज़ अ टेम्पररी लोन एंड दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ स्केची इन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। Only children would mistake a toy for the real thing. And yet, human beings either become infatuated with the toy or disrespectfully break it and throw it aside. In this life, stay away from all kinds of extremities, for they will destroy your inner balance. क्या ही खूबसूरत बात की है यहाँ शम्स ने मौलाना रूम को सिखाते हुए कि लाइफ इज़ अ टेम्पररी लोन, और कितने अरसे के लिए हम जीते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, एट द मैक्स 90, और उसके बाद हमें अपना जो नेचुरल अबोर्ड है, जो नेचुरल हमारी जगह है, वहाँ हमने वापस जाना है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट। तो ये एक टेम्परेरी सी रिहाइश गाह है हमारी, और उसमें हम अकड़ के चलते हैं, उसमें हम जोम करते हैं, उसमें हम मैं में पड़ जाते हैं, अपनी अना की खातिर ये भी समेट लूँ, ये भी कर लूँ, ये माल बटोर लूँ, बट इट इज़ ऑल टेम्पररी। नमरूद को देख लें, फ़िरौन को देख लें, सब चले गए। तो हमें ये गलतफहमी क्यों है कि हम यहाँ लॉन्गर देन 100 years रहेंगे। वो वक्त गया जब 950 साल लोगों की उम्रें होती थीं, आद और समूद का वक्त चला गया। तो बच्चा जो है वो जो टॉय है उसी को ओरिजिनल चीज़ समझता है, खेलता है, कुछ अरसे में उससे बोर हो जाता है, उसको तोड़ देता है और फिर दूसरी चीज़ की तरफ वो हाथ बढ़ा देता है। तो ये जो लाइफ है इसमें ऑल काइंड्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ हमारे गिरदोनवा में आएंगी, और लेकिन उनको देखते हुए हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अपना जो इनर बैलेंस है लाइफ का वो टूटने ना पाए, और यही पहचान है तसव्वुफ़ की, यही सूफ़ी करता है। Let's move on to rule number 23, which says the human being has a unique place among God's creation. जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान अशरफुल मखलूक है। I breathed into him of my spirit, God says. Each and every one of us, without exception, is designated to be God's delegate on earth, a wise gerund. अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैंने तुम सब लोगों को अपना नायब बना के भेजा है इस दुनिया में। सो आस्क योरसेल्फ जस्ट हाउ ऑफन डू यू बिहेव लाइक अ डेलीगेट, इफ यू एवर डू सो इन द फर्स्ट प्लेस। रिमेंबर इट फॉल्स अपॉन ईच ऑफ अस टू डिस्कवर द डिवाइन स्पिरिट इनसाइड अस एंड लिव बाय इट। जब अल्लाह ताला हमें फरमाता है कि मैंने तुम्हें अपना वाइस जरांट बना के भेजा इस धरती पे, इस ज़मीन पे मैंने अपना नायब बना के तुम्हें भेजा, तो यू हैव टू फाइंड द रीज़न व्हाई यू आर हियर प्रिसाइसली। क्या हम इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन जो भी बन के रहते हैं, क्या सिर्फ उसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन पे भेजा है, या कोई और मकसद भी है हमें यहाँ इस दुनिया में उतारने का? तो वो मकसद क्या है, हमें वो ढूंढने की ज़रूरत है। Let's proceed to rule number 24 now. Hell is in the here and now. So is heaven. Quit worrying about hell or dreaming about heaven, as they are both present inside us this very moment. Every time we fall in love, we ascend to heaven, and every time we hate, envy or fight someone, we tumble straight into the fires of hell. अब ये मेटाफोरिकल है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। जब शम्स कहते हैं कि हेल इज़ इन द हेयर एंड नाउ, अगर मैं कोई गलत काम करूँगा और मेरे अंदर थोड़ी सी भी एक रत्ती बराबर भी अच्छाई है, तो मेरा ज़मीर मुझे कहेगा कि शेख साहब आपने ये गलत काम किया। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इतनी सी भी मुझ में अच्छाई है और मेरा ज़मीर मुझे टोकता है इस बात पे कि you've done something wrong,
सो आई थिंक यू आर ऑन द पाथ. हम इस चक्कर में अक्सर लग जाते हैं, परेशान होते हैं कि जी हमने तो इतना गलत किया, अल्लाह ताला क्या माफ़ करेगा, एंड वी कंटिन्यू टू डू रॉन्ग. सो ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीफ विद इन योर सेल्फ कि आप हेवन और हेल को किस तरह डिफ़ाइन करते हो. रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स इसका मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है बेसिकली वो सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना शम्स तबरेज़ रादर कि हेल और हेवन क्या है. हेल और हेवन आप अपना यहीं बनाते हैं, इसी दुनिया में आप बनाते हैं. अच्छाई करते हैं तो दैट मीन्स आप हेवन में हैं, और बुराई करते हैं, बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, तो आपके लिए वही हेल है. तो क्या इंतज़ार करना हेल में जाने का और हेवन में जाने का. और एकदम मुझे बीबी रबिया बसरी का वो किस्सा याद आ गया, जब वो दौड़ी चली जा रही थी और एक हाथ में उनके पानी का बकेट और दूसरे हाथ में उनकी आग थी. तो एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने देखा और उनसे पूछा, रबिया ये तुम कहाँ जा रही हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, इस आग का क्या काम और इस पानी का क्या काम. तो क्या ही खूबसूरत जवाब दिया रबिया बसरी ने कि पानी मैं इसलिए लेके जा रही हूँ कि दोज़ख की आग को बुझा दूँ, और दूसरे हाथ में जो मेरे आग है वो मैं इसलिए लेके जा रही हूँ कि मैं जन्नत को जला दूँ. तो उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब. तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि हम जो इबादत करते हैं वो जन्नत और दोज़ख के चक्कर में करते हैं, दोज़ख से बचने के लिए करते हैं अच्छे काम. और क्या ये दिखावा नहीं है. तो ऐसी दोज़ख किस काम की और ऐसी जन्नत किस काम की जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाए हमारा. तो ख़त्म कर दूँ, एक की गर्मी को, तपिश को, हिद्दत को बंद कर दूँ, और दूसरे को जन्नत को जला के राख कर दूँ, ताकि हम सिर्फ खुदा से मोहब्बत करें और उससे उम्मीद बांधें, रादर देन अच्छाई या बुराई जन्नत और दोज़ख की हवस के लिए करें. तो अगेन इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. रूल नंबर 25 सेज दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्नोवी माउंटेन दैट echoes your voice. Whatever you speak, good or evil, will somehow come back to you. You go to the mountains, you'll shout out loud, it will come back to you. From the valleys, from the mountains, वो टकरा के आपकी आवाज़ वापस आएगी. Therefore, if there is someone who harbor ill thoughts about you, saying similarly bad things about him, her, will only make matters worse. अगर कोई गलत कर रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दें. Leave him or her alone. वो घूम के आएगी, मुकाफात अमल है. आप बुरा ना चाहें, आप बुरे ना बने. कीचड़ में आप पानी पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ उड़ के आपके भी कपड़े नापाक करेगा. You will be locked in a vicious circle of malevolent energy. Instead, for 40 days and nights, say and think nice things about that person. Easier said than done. लेकिन करके तो देखें. You can at least try. Everything will be different at the end of 40 days because you will be a different person altogether. Difficult, but yes, it can be done. The past is an interpretation. Rule 26 में शम्स कहते हैं, the past is an interpretation. The future is an illusion. The world does not move through time as it were a straight linear line, proceeding from the past to the future. Instead, time moves through and within us in endless spirals. Eternity does not mean infinite time, but simply timelessness. ये यहाँ स्पेस और टाइम का इशू आ रहा है, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स का इशू डिस्क्राइब हो रहा है. इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस एक्सटर्नल इल्यूमिनेशन, पुट द पास्ट एंड द फ्यूचर आउट ऑफ योर माइंड एंड रिमेन विद इन द प्रेजेंट मोमेंट. हम डिप्रेशन में उस वक्त जाते हैं जब हम अपने पास्ट का सोचते हैं, देखते हैं कि हमने क्या किया, हमसे क्या गलत हुआ. और स्ट्रेस उस वक्त हम लेते हैं जब हम अपने फ्यूचर का सोचते हैं कि मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया तो क्या होगा. बट वी डोंट लिव इन द नाउ. अ सूफी लिव्स इन द नाउ. ही डजंट केयर मच अबाउट हिज पास्ट. व्हाट इज़ डन. यू कांट रिपीट दैट. व्हाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. और जो फ्यूचर में आने वाला है वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए. वो जो करता है बेहतर करता है, तो आपके लिए भी बेहतर ही करेगा. Rule 27 कहता है, Destiny does not mean that your life has been strictly predetermined. अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ट्रिकी है. Therefore, to leave everything to fate and do not actively contribute to the music of the universe is a sign of sheer ignorance. The music of the universe is all pervading and it is composed on 40 different levels. वही जैसे 40 rules of love की बात हो रही है. तो सब कुछ डेस्टिनी पे हम नहीं छोड़ सकते.
हमें अकल शऊर अल्लाह ताला ने दिया है और हमें उससे सोचना है, बेहतरी का सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी का सोचना है और एहसन और बेहतर तरीके से अपने कामों को करना है और फिर अल्लाह पे छोड़ना है और फिर एक्सपेक्ट करना है उससे कि वो हमारे हालात बेहतर करेगा और हमें उसकी जज़ा देगा अगर हम अच्छा काम करते हैं. Rule 28 says the true Sufi is such that even when he is unjustly accused, attacked and condemned from all sides, he patiently endures, uttering not a single bad word about any of his critics. A Sufi never apportions blame. How can these be opponents or rivals or even others when there is no self in the first place? How can there anyone be blamed when there is only one? जब अल्लाह की ज़ात में सब कुछ मिल गया, जब मैंने सबमिट कर दिया अल्लाह की ज़ात को, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ इस्लाम, इज़ द मीनिंग ऑफ इस्लाम. सो जब वो या तू और मैं एक हैं, जब वो और मैं एक बन गए, तो फिर मैं क्या और वो क्या. और यही कॉन्सेप्ट है सूफ़ी का कि वो जब उसको कोई अटैक करता है, उसको कोई सफोकेट करने की कोशिश करता है, उसको कोई बुली करता है, वो चीज़ अल्लाह पे छोड़ देता है. बिकॉज़ हर चीज़ उसका ये बिलीफ है, फर्म बिलीफ है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है. कुरान शरीफ में अगेन अल्लाह ताला फरमाता है कि सारी जो खुशियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो मेरी तरफ से हैं और सारी जो बुराइयाँ हैं वो तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से है. दिस इज़ वेरी क्लियरली रिटन इन द कुरान. सो आई थिंक ये उसी का अक्स है. Rule 29 says if you want to strengthen your faith, you will need to look often inside, travel within. For your faith to be rock solid, your heart needs to be as soft as a feather. Through an ill accident, a loss, a fright, one way or another, we are all facets with incidents that teach us how to become less selfish and judgmental about others, and more compassionate and generous. Yet some of us learn the lesson and manage to become milder, while some others end up becoming even harsher than before. The only way to get closer to the truth is to expand your heart, so that it will encompass all humanity and still have room for more love. Again, this is a very difficult prerogative when being compassionate towards others, showing your love towards others. Love thy enemy बहुत फेमस जुमला है बाइबल का. वो एक गाल पे अगर मारा आपको तो आप दूसरा गाल पेश कर दीजिए. अगेन बाइबल का हज़रत ईसा के तवस्सुत से जुमला है. ईज़ियर सेड देन डन. हम बहुत इंटॉलरेंट हो जाते हैं. हम फ़ौरन हमें कोई अटैक करता है तो हम उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. अगेन थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है लेकिन करके देखें. वी नीड टू ट्राई बिकॉज दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस. रूल 30 में शम्स फरमाते हैं नथिंग शुड स्टैंड बिटवीन योर सेल्फ एंड गॉड. दिस इज़ समथिंग विच अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग दीज डेज. हम जहाँ परेशान होते हैं तो दूसरों से रुजू करते हैं, हम अल्लाह को भूल जाते हैं. लेकिन imagine if I'm sitting in a boat and I'm in the middle of the ocean and the boat starts to sink. Who do I usually remember? Either my mother or my God, in whatever language that I'm thinking at that moment in time. उस वक्त खुदा याद आता है. उस वक्त दिल चाहता है कि अल्लाह मियाँ सॉरी, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगा, इस वक्त बचा ले. राइट? तो काश कि हम हर चीज़ के लिए इसी तरह अल्लाह से रुजू करें, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, मुश्किल का वक्त हो, आसानी का वक्त हो, सब्र और शुक्र से गुजारते हैं. Not imams, priests, rabbis and any other custodians of moral and religious leadership, not spiritual masters, not even your faith. Believe in your values and your rules. Of course, the rules being given by God Himself, but never lord them over others. Don't think that you are supreme. Don't think that you're better than others. If you keep breaking other people's hearts, whatever religious duty you perform is no good. अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक जगह फरमाता है कि
तुम्हारी सारी नमाज़ें, तुम्हारी सारी रियाज़तें, तुम्हारी सारी इबादतें एक मैले कपड़े में लपेट के तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, जाओ मैं तुम्हारी नमाज़ों से बेनियाज हूँ। अगर तुम में हुस्न अखलाक नहीं है तो हुस्न अखलाक इज़ द मेन थिंग, और जिससे क्लैरिटी आ जाती है कि कितना ज़रूरी है हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह तो चाहता है हमसे, लेकिन पहले कहता है हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो। और यहाँ जैसे कि रूम कहते हैं, इफ़ यू कीप ब्रेकिंग अदर पीपल्स हार्ट, वट एवर रिलीजियस ड्यूटी यू परफॉर्म इज़ नो गुड। स्टे अवे फ्रॉम आइडोलेट्री, फॉर दे विल blur your vision. Let God and only God be your guide. Learn the truth, but be careful not to make a fetish out of your truths. Yeah? Don't overemphasize yourself. मैं को मारना है, अपनी अना को ख़त्म करना है।